कॉफी विद कुमुद, चीयर्स। मुझे कितने कॉल आते हैं, थ्रेड कॉल आते हैं, आपने पोस्ट क्यों किया? मैंने लिटरली उसको मैंने कहा दिखोगे कहाँ इस वीडियोस में। Hi everyone and welcome back to Sundays with Kumud over a cup of coffee. Today we are talking about one of the most exciting parts of wedding planning, bridal fashion. But choosing your wedding outfit isn't just about following trends. It's about finding something that reflects your personality, feels comfortable and photographs beautifully. Joining me today is Rachita from JWS Studios, who's been styling brides, helping them find their dream wedding outfits. Welcome, Rachita. Hi Rachita, how are you? Hi, how are you? Welcome to Coffee with Kumud. Karan nahi Kumud. Kumud, right? So you have been taking care of JWS since a very long time. Yeah, I joined 6 years back after my marriage. पहले तो मैं सिर्फ शॉपिंग करने जाती थी, फिर मेरी शादी हो गई। We'll just keep it very quick and a few questions that like today's brides, whosoever is planning to get married, yeah, already not maybe for the wedding, अपने cousins की wedding, friends की, whatever. So you can just give us a few things, like you can just tell us what can we do about it, and जैसे like over the years fashion has changed a lot, right? Yeah. So what is the major thing you have seen in those years while working? कि पहले क्या होता था और अभी क्या एकदम से चेंज आ गया होगा? फैशन बहुत फास्ट फैशन हो चुका है अभी, बट एक चीज जो कांस्टेंट है ना, रेड कांस्टेंट है, सिर्फ रेड, बट रेड के इतने वेरिएशंस आ गए दैट एवरी 6 months द रेड का चेंजिंग, रेड इज चेंजिंग एवरी 6 months. Sometimes it's blood red, sometimes it's again people burnt are red. also specific about that. Yeah, and see now it all, the bridal aspect, it all depends on the color. If the girl or if the bride वो मतलब gets attracted to a color, she doesn't look at the design. एक तो उसका मेन होता है कि भाई ये कलर अच्छा लग रहा है, मेरे पे सूट कर रहा है, तो वो अच्छी भी बात है, and it gets pick up very fast. तो do you think जो अभी एकदम पेस्टल्स का ट्रेंड शुरू हुआ था या अचानक से कोई चेंजेस ऐसे आए थे कि नहीं हमें सिर्फ आइवरीज में जाना है या बिल्कुल ही लाइट्स में जाना है, so is it still going on या honestly जम्मू में ना आइवरी नहीं चला, आइवरी नहीं चला because they have that perception also. Yeah. Personally, we love whites. I think like coincidentally we are wearing white also. Okay, so also like people, are they very specific about personalizations or something? Yeah, today girls are very prompt. बहुत fashion aware हैं. Maybe क्या? It's because Instagram, social media, बहुत ज़्यादा. Everybody is aware so much. सब designers का सब कुछ सबको पता होता है. But जब वो actual में वो चीज़ देखते हैं ना, जो देखने में होता है, and जब वो पहनते हैं ना, it's totally different. It's a totally game changing thing. I guess people have got a lot of myths about कि हाँ इंस्टा पे हमें दिख रहा है उनका, if they are watching a Bollywood wedding, तो उनका aesthetically it is so much and they have invested so much. Exactly. So that is also one thing, like people need to understand what it is looking good on anybody else may not look good on me. तो ये लोगों को acceptance आना पहले, and then that pocket has to be that your outfit has to look, I guess, equally good with all the things otherwise. जो pocket वाला aspect हमें बोला ना, minimalistic में भी ना, see अगर तो वो जो चीज आप देखते हो वो minimal भी वो इतनी defined होती है, which is so much labor into it, and eventually it is costly. And अभी जैसा scenario है market का, everything, every कारीगर, every material, everybody has hyped up their rates like anything. Obviously. तो चलो वो तो प्राइसिंग एस्पेक्ट हो गया, बट जब क्लाइंट वो चीज़ देखता है एंड फिर वो बोलता है कि ओ ये तो बड़ा महंगा है, ये तो उसमें तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, जम्मू का थोड़ा सा है कि 80% लोगों को दिखना चाहिए कि क्या है। लो लड़कियां आती है मिनिमलिस्ट लेने, साथ में उनके पेरेंट्स भी होते हैं, वो बड़ा बैलेंस करके उनको चलना पड़ता है कि भाई वो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा खाली है। ये चीज़ 5 years पहले की बता रही है। अब के पेरेंट्स वो अंडरस्टैंड हो चुके हैं, वो भी शायद इंस्टा वेयर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ ठीक है, अगर लड़की को जो पसंद आ रहा है, एंड इनफैक्ट इन-लॉज भी जो साथ में आते हैं उनको भी जो अच्छा लगता है तो वो ओके है। मनी पार्ट पे आते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये तो बड़ा ज्यादा है, बट काम तो इसमें बहुत कम है, ये क्या रीजन है, उधर जाते हैं। कम करने में ज्यादा मेहनत लगती है यार। सी जितना आप
अगर आप intricate कम में भी, होगा, हाँ कितना- जितना इंट्रिकेट होगा उतना और डिफाइंड होगा और उसमें लेबर इनपुट होगा, बट जितना उसको आप उसको लेस वर्क में भी बना सकते हो, हल्का कपड़ा भी लगा सकते हो, सब कुछ होता है आजकल, सब चल रहा है। I understand. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। अगर ऐसा नहीं है, इफ योर पॉकेट अलाउज कि मुझे हाँ काम लेना है, उसमें भी चीजें मैनेज हो जाती हैं। अगर इफ यू आर ओके विद इट, और उसमें भी चीजें मैनेज हो जाती हैं। Exactly. But do you think अभी बहुत ज्यादा लोग कंफर्ट की तरफ भी जाने लगे या है ना, कि मतलब मुझे लगता है हाँ. कि जितना लाइट वेट हो हाँ. या कुछ है, बिकॉज इवन इफ अ ब्राइड इज कमिंग टू मी फॉर कंसल्टेशन, द हाँ. फर्स्ट थिंग आई टेल देम क्या कि जब आप comfort? आउटफिट लेने जाओ तो प्लीज अपना ये मत देखो कि सुंदर लग रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है, हाँ. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सब कुछ इकट्ठा आना है, मतलब योर दुपट्टा, ज्वेलरी, योर मेकअप, एवरीथिंग, एंड दैट स्ट्रेस एंड एंजाइटी आल्सो इज कमिंग अलोंग विद दैट। सो जब आती है ना एक ब्राइड आती है, एक ना फनी पार्ट मैं सुनाती हूँ, सेल्स एवरीबडी टीम्स देयर, तो मैं जब फॉर अ चेंज में जब आती हूँ, मेरी कोई ब्राइड होती है कंसल्ट, वो ना बड़े इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है उनको होता है कि मैंने अपना बेचना है, हाँ। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, That is दे हैव हाँ. देयर टारगेट्स, मैंने दिए होते हैं, व्हाटएवर हैव देयर टारगेट्स। फिर उसके बाद जब मैं आ जाती हूँ, बीच में बोलती हूँ, अगर उसको कुछ पसंद आ रहा होता है, उस तरफ जा रही होती है, तो बोलती हूँ यार तुम मुझे बताओ ये तुम्हारी पर्सनालिटी पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो मेरी शक्ल देखते हैं, मैं उनकी शक्ल देखती हूँ, कहते हैं मैम क्या, मैंने कहा यार इट्स ओके, ये मेरा रिलेशन बिल्ड अप उनके साथ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी दे दूँ उनको उठा के। But that's how Yeah. the bride has to Yeah, know कि उसको exactly, क्या चाहिए, exactly. उसका that is her big day, maybe हाँ, that तो has to be taken अगर care of. अगर सपोज कोई ब्राइड आती है और उसको कोई दो चीजें पसंद आती है, एंड इफ शी आस्क्स कि मैम कुछ और आना है या शुड आई वेट, सपोज इट्स माय दिसंबर वेडिंग और जनवरी वेडिंग, शुड आई वेट, तो मैंने कहा यार हाँ आई हैव सम डिजाइन्स इन माय माइंड, तो यू कैन वेट फॉर 15 days, आ जाओ। According to you, जैसा भी आप बोल रहे हो कि अगर वेट करने का है, but how long before that bride should buy their outfits, like 3 months. 3 months. 3 months. 3 months is a very good time. It's suppose if you're looking for something and you want to get it customized or some कुछ changes करनी है, कुछ भी करनी है, so 3 months is 3.5 months, 3 months is मतलब it's not too late or too early to, मतलब कि fashion trends भी change नहीं हो रहे हैं, fashion trends भी change नहीं your हो रहे हैं, fittings हाँ, क्योंकि weight सब कुछ lose हो up जाता down है, होता हाँ वेट लूज अप डाउन बहुत बड़ा बहुत ज्यादा है, तो alterations आती मैं हैं अपने और- टाइम पे गेन कर गई थी, कुछ रिड्यूस कर जाता है, ऐसे ही होता है। Now coming to the next question, like what's the biggest mistake like the brides make while choosing their outfits? सी मिस्टेक ज्यादा ये है कि अभी सडनली देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स कि बहुत सारे दुपट्टास ले लो। अगर कोई पतली ब्राइड है, वो इतने अगर सपोज एक बीच में 3 दुपट्टास का भी ट्रेंड आया था, हाँ, वो एक्चुअल लहंगा जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो तो छुप जाता है, वो तो दिखता ही नहीं है। आप फिर ऊपर भी ले लेते हो, सर पे भी ले रहे हो, तो फिर आप मेकअप पे भी इन्वेस्ट करते हो, फिर ज्वेलरी भी लेते हो, वो आपको बहुत क्लस्टर्ड फील करता है। आपकी खुद की पर्सनालिटी और वो एनहांस ही नहीं होती है, आप खुद एक डे एंड में ऐसे थके बैठे होगे कि ये क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। मैं तो कई बार ये भी बोलती हूँ कि I usually keep one dupatta with my lehengas, and if a girl is very slim and ये वो I जब require नहीं होता, if the lehenga is itself is very pretty, उसका बहुत अच्छा work है, तो I tell her कि why are you buying another dupatta and उसमें 15,000 या 10,000 you're spending, which is useless, कुछ काम नहीं आना आगे, क्यों कर रहे हो? It's a mistake, it's a big mistake. I had a bride, she got 4 dupattas. I see, and yeah. मैंने literally उसको मैंने कहा दिखोगे कहाँ इस हाँ. photos में? Then कहीं ना कहीं हमने 3 की प्लेसमेंट दी, but that was like कि नहीं ये मेरे हस्बैंड ने चूज करा है, ये मेरी इन-लॉज ने चूज करा है। कई But बार वो बेचारी आप- हेल्पलेस भी होती है, हाँ. but चलो बट अब जैसे लास्ट द ब्राइड वाज वेरी थोड़ी बल्की, बट अच्छा. वी मेड श्योर कि एक ही दुपट्टे में अगर ग्रेस आ रही है एंड दूसरा दुपट्टा इतना फैलाव में था, वी वांटेड कि वो रहने दो क्योंकि दैट विल लुक मेक यू लुक मोर ब्रॉडर। सो आई गेस वो चीजें भी आउटफिट चूज करते क्योंकि देखते हैं कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, हाँ. जब पूरा सब कुछ आता है तो उसमें दिक्कत आती है, राइट? दूसरा एक और चीज, आपकी जब नेकलाइंस होती हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट, तभी मैं बोलती हूँ जैसे 3.5 या 3 months का टाइम दो, इन्वेस्ट इन गुड टेलरिंग, राइट, आप टाइम दो उसमें मुझे। अगर क्योंकि हम लास्ट मिनट जब लेते हैं तो ऑल्टरेशन होती है, उसमें कुछ ना कुछ नहीं प्लस माइनस रहता है, हमेशा रहता है। आप जो भी एक चीज ऑल्टर कराते हो कुछ रहता है, तो हम 99% उसको ठीक करते हैं। वो जैसे पतली लड़कियां होंगी, सपोज देयर इज लाइक प्लस साइज 40 42 साइज, उनका नेकलाइन का बहुत इशू, फिर हम बोलते हैं बॉडी टेप्स लगा दो, डज इट वर्क? नहीं, it doesn't, it actually doesn't, क्योंकि they get us कि हाँ ग्लू ड्रॉप्स ले आओ या उससे बॉडी टेप्स ले आओ, हाँ. उससे स्टिक कर दो, बट नहीं होता।
And what I felt over the years, like the jewelry and everything also, I feel there has to be specific difference between that there jewelry should be and difference between your neckline. Yeah, exactly. थोड़ी skin दिखनी चाहिए नहीं तभी तो वो कई अच्छा बार लगता है, वो वैसे लगता है इतना trusted पर सब कुछ किया हुआ है. Because generally when you are in a very casual atmosphere, तो मेरे को लगता है कि उसमें आपको इतना difference feel नहीं होता है. हाँ. But when you are overall ready और वो एक एक चीज खाली outfit या खाली makeup specifically कुछ काम नहीं करेगा. It is the overall look that is going to impact, right? On this note, एक और चीज, पहले जैसे जम्मू में इतनी ऑप्शंस नहीं थी फॉर मेकअप ऑल्सो एंड अटायर्स ऑल्सो. लोग बाहर जाते थे. उसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है आपकी ट्रायल्स. आप चले तो जाते हो लेने, फिर ट्रायल्स 1 ट्रायल 2 ट्रायल वो उल्टा ज्यादा एक्सपेंसिव और कॉस्टली हो जाता है. आपको रियलाइज नहीं होता एंड बाद में जब वो फर्स्ट टाइम नहीं आता एंड आपको कोरियर करके भेज देते हैं, इट गेट्स वेरी ट्रबल. And then they're finding tailors here to अगर इतनी ब्राइड्स के पास आती हैं, कुछ कोई और चीज का लिया होता है एंड कोई ब्राइड आ जाती है कि मैम मेरा ना ब्राइडल आउटफिट ठीक करा दो, यही कर दो. हमारे पास भी रश आवर्स होते हैं बट समटाइम्स आई कैन नॉट से नो. उनको भी कराना, कभी उनके जिप्स का बहुत ज्यादा चीज होती है, एनीथिंग बहुत प्रॉब्लम आता है. तो चलो जम्मू में हम आ गए. वी आर हियर. I know you have been doing good, but still this market I guess is very unpredictable. Very unpredictable, very demanding, very fast, very demanding. मतलब बहुत चेंज हो रहा है और किसी को किसी और का सेम भी नहीं चाहिए. नहीं पहना था. नहीं, जैसे लोग बाहर डिजाइनर्स के एक वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा बट अगर आपने हमारे पास वो. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपने कोई शूट पोस्ट कर दिया वो तो वैसे नहीं किसी ने एक और ले लिया. मुझे कितने कॉल आते हैं, थ्रेड कॉल आते हैं, आपने एक पोस्ट क्यों किया है, इसको हटवाओ, ये क्यों किया है. मुझे मैं आपके पास तो एक एडवांटेज है, आपके पास तो चलो बिल्कुल जब रेडी हो गई देन यू कैन पोस्ट इट. मैं तो वो प्रीश भी नहीं डाल सकती क्योंकि ऑब्वियसली इट विल रिवील देयर अटायर की कौन सा है कौन सा नहीं है. अच्छा, इज इट समथिंग अबाउट लाइक बिफोर बाइंग एन आउटफिट वेदर कंडीशन देखना या क्या फैब्रिक किस वेदर में होना चाहिए वो भी आपको इम्पोर्टेंट है, या वेन्यू आपका इफ इट इज ओपन और लाइक इंडोर्स और आउटडोर्स या कहाँ पे है या आपका डेकोर कैसा है. हाँ, उससे भी मैटर करता है. एंड प्लस द ग्रूम का जो आउटफिट आज वो भी चला है ना. हाँ, वो प्लीज गाइस वो मत करो, सेम कलर्स नहीं लेने होते. ग्रूम और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एस्थेटिकली. हाँ, अब आजकल एस्थेटिक्स मैटर अ लॉट, जो बोल रहे हो डेकोर एंड एवरीथिंग, उसके अकॉर्डिंगली. I remember when I had wedding planner, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट्स योर अटायर कलर. मैंने कहा अच्छा, मैंने तो अभी लिया भी नहीं है. तो मतलब इट्स है कि इतना आगे प्लस है कि एस्थेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओवरऑल लुक मैटर्स. या एंड समर में ऑब्वियसली अब आजकल बहुत फैब्रिक्स आ गए, टिश्यूज हैं, सिल्क्स हैं, बट नेवरदलेस ऑलवेज सिल्क वर्क्स. Silk is I guess overall. उसकी ग्रेस भी एक अच्छी अलग आती है. It gives a very royal. जब कई बार होता है कि ब्राइड ने जुलाई में शॉपिंग कर रही है, उस टाइम तो आपके पास नवंबर की वेडिंग्स के लिए आउटफिट नहीं आए होते हैं. ऐसे वो हमारा वैसे ही होता है. एवरी सीजन वाइज 4 months we do prior. Okay. Suppose a July bride come, November, अभी November December brides are coming. अभी जुलाई के टाइम पे, सो वो उसी टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक्स और क्लोथिंग लेते हैं. तो मैं वही बोल रही हूँ, मेजरली ओवर द ईयर सिल्क वर्क्स. आजकल सिल्क्स आर गोइंग वेरी गुड क्वालिटी. तो सर तो कुछ है नहीं कि गर्मी also for the other functions like आपका हल्दी संगीत कॉकटेल, like what is in trend right now, या हम उसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं कि मैं हर फंक्शन में लहंगा नहीं पहन के जा रहे हैं बट समथिंग एल्स. See, मेहंदी is the only function which you can experiment anything with lot of colors. Bohemian looks works a lot. आप उसमें आई थिंक मेकअप भी बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आई थिंक इट्स माय फेवरेट फंक्शन. उसमें तो आई रियली गो. आजकल कार्निवल्स चले आजकल बहुत ज्यादा. सो थोड़ी ट्राइबली लुक या बोहेमियन लुक लुक्स अमेजिंग. मल्टी कलर्स लुक वेरी वेल. मतलब सिंगल कलर्स में बड़ी देर से बंद चल रहा है, तो गर्ल्स गो फॉर मल्टी कलर्स. थोड़े से अब आजकल डल मल्टी कलर्स बहुत अच्छे आ गए. डल शेड्स में मल्टी कलर्स एंड सिल्क में डल शेड्स लुक वेरी नाइस. अच्छा लगता है. दैट लुक्स नाइस. मतलब थोड़ा चेंज भी चाहिए ना, क्योंकि
और कुछ- मल्टी में चेंज क्या बताऊं, पहले से टू मच मल्टी था, नहीं अब सिंगल Single टोन, में- सिंगल single टोन। tones के ही सपोज variations रेड्स के वेरिएशंस आ रहे हैं, डार्क डीप रेड, लाइट रेड, ऐसे उसी करके के वेरिएशन, variation, monochromes में ही चल रहे हैं, मोनोक्रोम्स है, या है ना? उसी बहुत में अच्छा चल लगता रहा है। है, ग्रीन्स है तो ग्रीन्स के वेरिएशंस, बॉटल ग्रीन बहुत टाइम में चल रहा है। बॉटल ग्रीन, दैट्स अ वेरी डिफरेंट एंड गुड कलर, डीप मतलब बॉटल ग्रीन मतलब वो अच्छा कलर है, किसी पे भी एंड ग्रीन नेवर गोज आउट ऑफ फैशन आल्सो आई गेस। एंड ग्रीन कभी जम्मू का कलर नहीं था। एक हाँ। पॉइंट था, आई बॉट 2-3 गारमेंट्स बॉटल ग्रीन, वो मेरे पूरे साल पड़े रहे, नहीं लिए। एंड वो एक मिसकंसेप्शन है कि बॉटल ग्रीन नहीं पहनना। यू नो, फॉर माय ब्राइडल आई लव द लहंगा जो ग्रीन था, मुझे नहीं किसी ने चूज करने दिया क्योंकि वो ग्रीन है, मैं वही ग्रीन नहीं लेना। ये वो हमारे शायद यहाँ पे ऑलरेडी मिसकंसेप्शन, वाइट्स नहीं Whites पहनने, नहीं ब्लैक्स पहनने, नहीं पहनने, डार्क ब्लूज नेवीज में नहीं हाँ। जाना है, ग्रीन बट आप कलर्स पहन रहे हैं, आइवरीज तो अभी भी पहन। अभी भी तो है वो, हाँ वो चीज है। व्हाट इज एक्चुअली ट्रेंडिंग इन 2026 अकॉर्डिंग टू यू, लाइक वन थिंग, देख मेरे को लग रहा है शायद कंटेम्पररी से लोग Corsets, वापस आ गए, कॉर्सेट ब्लाउज, कॉर्सेट ब्लाउज इन Fitting साड़ीज, इन ड्रेप्स, इन लहंगास। इनफैक्ट आजकल मिनिमलिस्टिक जो ब्राइड्स आ गए वो भी कॉर्सेट ब्लाउज को जैसे हेवी एम्बेलिश कॉर्सेट करके प्लेन लहंगा विद बॉर्डर्स, मिनिमलिस्टिक ब्राइड्स बहुत आ रहे हैं। But tell me something, like if we are doing, जैसे अगर हमारे blouses, mostly the pictures are going to be like the top part, right? जैसे sitting में आ रही हैं, yeah. आपका पूरा तो portraits कम होते हैं, या कभी आपकी like with the groom also and whatever. So according to you, should the blouse be clean or the blouse should have work? Yeah, blouse should have work. Blouse should have work. Because It there should was a not trend be- कि बिल्कुल plain blouses और सिर्फ sleeves पे काम शुरू हो गया था, या वो कभी ब्राइडल में इतना जम्मू में नहीं आया। मैं बोल रही हूँ ना, जम्मू इज अ टोटली डिफरेंट मार्केट। यहाँ पे पीपल वांट वर्क जो थोड़ा दिखे, कहीं पे दिखे, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। अभी जो एक तो आपका ज्वेलरी भी आ जाती है, देन देयर इज वरमाला, देन देयर इज हेड गियर, एवरीथिंग, तो इतना तो वैसे भी दिखता नहीं है। ब्लाउज का पार्ट इतना दिखता नहीं है, तो आप उसको प्लेन भी रखो या वो भी रखो, इट हार्डली मैटर्स। but if you're not बट draping, स्टिल, but हाँ, I guess बट तो- स्टिल थोड़ा वर्क वाला ब्लाउज लुक्स गुड, कॉम्प्लीमेंट करता है उसको। so बट हाँ, थोड़ी वही स्किन एंड ऑल थोड़ी दिखनी चाहिए ज्वेलरी एंड उसमें। जूलरी के साथ Necklines में, नेक लाइंस, yeah. लाइक बहुत would you give me good. just like 2-3 नेक लाइंस जिसमें लोगों को एक्चुअली लगता है कि हम थोड़े पतले लगेंगे, लाइक या आउटफिट्स में हमें लगेगा कि कुछ है वैसा, या सारी ब्रॉड शेप्स, एनीथिंग इन एनी वे, जिनकी ब्रॉड नेकलाइन होती है नेक से, दे शुड बी बिट ब्रॉड, नीचे का शेप इट हार्डली नहीं मैटर्स, मैटर करता। यहाँ से ब्रॉड होना चाहिए। एंड कलियां या कुछ उसका स्पेसिफिक कलीज तो यार जितनी कलीज उतना ब्यूटीफुल है लहंगा। इट ऑल फिश टेल्स शुरू हुए थे स्ट्रेट एंड नीचे से, वो अब फिश ऐसे नहीं है, अब स्ट्रेट आ गया। स्ट्रेट आ गया वापस। Now this season it's straight. So Okay. Western, it's all straight. You go for drape, blouse, and now it's straight. It's not like this fish. Yeah. पीपल हैव, आई गेस एक दो मेरे पास अभी रिसेंटली ब्राइड्स थी कि हमें जोधपुरी पहनना है, नाउ दे आर लाइक स्पेसिफिकली गोइंग फॉर कि मेरे को डोगरी में ही पहनना है, तो अच्छा। उससे भी मतलब आई डोंट नो इफ इट इज अ ट्रेंड राइट नाउ, या मे बी ट्रेडिशनली दे वांट टू गो डोगरी। बैक। हाँ, lot of brides are rooted. अच्छी बात है, वो सब कश्मीरी brides हैं। कश्मीरी ब्राइड्स, आई नो दे हैव दैट पर्टिकुलर रेड साड़ी बिकॉज़ आई हैव बीन डीलिंग विद कश्मीरी ब्राइड्स अ लॉट। हाँ, तो उनका वो कुछ हेड का भी Head होता है, का, तगा, तगा। yes, उसमें वो रहता है कि Because I've seen what happens is with Kashmiri brides, they have Yeah. specific red silk saris, Banarsi saris, and that border. If at all that bride wants to change something, so after that reel is posted, तो उस पे नीचे ना इतने लंबे comments आ जाएंगे कि bride ने अपने traditions छोड़ दिए. But that is not how her day is. She Okay. wants to ये like, मुझे look पता like था। that. That is how I feel. और ये चीज होती है, मतलब because that the community is very close knitted. I guess that is very good. मतलब हम लोगों में शायद इतना वो अच्छी चीज बात है है, नहीं है. अच्छी बात है। But now the intercaste marriage is going on. Yeah. बहुत चीजें हैं वो उस चीज को लेके, है ना? So okay, so we'll do a quick rapid fire with you. Okay. Yeah. ठीक है? So what is your personal take on red or ivory? Reds. 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 Yeah. Okay, so we are talking about a bride, right? Yeah. Right. ठीक है. And day wedding or night wedding? Day wedding. The colors or everything looks amazing in day wedding. खुल के आता है सारा कुछ, है ना? Classics or contemporary? Always classics. Veil or dupatta? Dupatta. Veil is very bad choice. Heels or sneakers? So it depends. Juttis.
jutis. But you have a good height, so that's why So you can say that. heels matter a lot. Wear heels, it gives you a good posture. बहुत अच्छा look आती है. And then later on when there's celebratory mood, you can always change. Yeah. Okay, so minimal jewelry or statement jewelry? Personal choice. Statement jewelry also works. Minimal jewelry, no, statement jewelry. Statement jewelry. Okay, so favorite bridal color for brides besides red? Gold. Gold Any for the day bridal gold. outfit. Yeah. For the bridal outfit. For the bridal outfit. One bridal trend that's just overrated. Too many dupattas. Yeah. Very overrated. So one fashion essential every bride should invest in. Good makeup and good photographer. So photographs, girls live with you for so long. Hire a very good photographer and make a good rapport with your photographer. उसको ना हाँ वो निकालना आना चाहिए. Exactly. आप 3-4 hours you spend in your makeups and everything and आपका टाइम पता ही नहीं लगता है. Just have a good chat with the photographer कि मुझे कब क्या कैसे चाहिए. Be open with it and I guess photographer के साथ वो आपको comfort zone आना चाहिए so that you are not conscious exactly. enough to just pose Yeah. on different angles. वो candidates actually candidates होने चाहिए Yeah. instead of posing. So I hired a good photographer, but हमारी बारिश हो गई उस वजह से ना मेरे पूरा मतलब वो चीज़ भी मेमोरी बहुत कम है उस चीज़ की वेडिंग डे की. बाकी सब बढ़िया है तो बहुत ज़्यादा ना एक वो होना एक रहता है. Yeah. So I complete this sentence. Yeah. A beautiful bride is the one who Who's happy and comfortable, I feel. perfect, right? Like I don't know, Yeah. whatever outfit you go with, Exactly. your makeup, your whatever pictures, but Exactly. it reflects on your face. Yeah, you're Jab- happy, you with your partner, just cherish that moment, just be with I him. agree, right. Just don't over complex yourself कि भाई मैंने ये कराना है, ये करना है, वो करना है. Like while doing their makeups, most of the brides यार इधर से कॉल आ रहा है, बहुत रेयर होती हैं कि जो बहुत अपने Yeah. कंफर्ट जोन में क्या मेरे को काम लेना देना नहीं है, होते रहेगा क्या ही Exactly. खराब हो जाएगा. इसमें ना just brides assign your work to everybody. Give your हाँ, phone. exactly. किसी को दे दो. क्योंकि पूरा जिस अपनी जो bridesmaid already- को ना use करो उस दिन. Exactly, You वो should be important free, होता है. enjoy and tell your bridesmaid to click your pictures. वो करते जाओ. वो अपना टास्क ऐसे साइन करो कि एंड में ना तुम्हारी पिक्चर्स ही तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है. Like, पूरा 6 महीने साल ब्राइड हाँ. आ रही होती है और उस टाइम बहुत अच्छे से होती है. जिस दिन वेडिंग वाले दिन हाँ. आती है और इतना बोझ लेके Exactly, आती है कि उसका exactly. जितना मर्जी वो खिलेगा ही नहीं, ना आउटफिट ना मेकअप. इट हैज टू बी लाइक द हैप्पी ब्राइड फ्रॉम विद इन. Exactly. सो वो निकल Yes. के आना चाहिए. या मैंने एक बार इसमें मेरी अभी सिस्टर की वेडिंग हुई थी बट क्योंकि मैंने ना ये मुझे मेरा एक्सपीरियंस था कि आई शुड बी फ्री तो उसने मेरे वेडिंग के टाइम पे ना शी मेड वंडरफुल थिंग फॉर मी दैट आई वाज टोटली इनटू इट बट उसकी ब्राइड मेरे पास बेबी Baby था. एंड मैं आधा टाइम उधर आने बेचारी खुद हैंडल करी थी ऑन द फोन एंड व्हाटएवर शी गॉट लेट फॉर हर वेडिंग तो मुझे ना बड़ा रिग्रेट है तभी मैं बोलती हूँ कि नहीं, बट दैट इज Dinner लेके, इम्पोर्टेंट. yeah. हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जब तक खुद आप स्ट्रेस फ्री Yeah, होगे you वो आपकी should be शक्ल पे free. आएगा. आई अंडरस्टैंड. आई हैड अ ब्राइड रिसेंटली, उसको लिटरली सर्वाइकल अटैक. शी वाज गिविंग अ फोटोशूट इधर अरे कॉरिडोर बाप में रे. सब कुछ Yeah. एंड और उसको हम 9:30 बजे तक हम उसको कभी कोई मेडिसिन डॉक्टर से पूछ के दे रहे हैं कि उठे एंड जस्ट कामिंग हर नर्व्स डाउन कि भाई नॉर्मल हो जाओ, कुछ नहीं है, इट्स ओके, इट्स योर वेडिंग, डोंट स्ट्रेस अप. बट दैट्स ठीक है. अभी शायद मेरे को नहीं पता. आई जस्ट सीन ब्राइड्स तो Yeah. इसलिए मैं बोल सकती हूँ, बट इट हैपेंस आई गेस. Yeah. तो क्लोथिंग में भी ना इसका एक और जो है गेट योर 2-3 ट्रायल्स. आप बिल्कुल श्योर हो जाओ, अपना गारमेंट रेडी रखो और उस दिन रिलैक्स रहो 3 days. कुछ नहीं नहीं करना, करना. सिर्फ एंजॉय योर डेज, दैट्स इट. So, again, this is the last and final question. But what's the one thing every bride should remember on a wedding day beyond the outfit? Cherish your memories with your partner, your family, everybody. It's the only day you're going to be with your family, full family. Full family. As single. Next day everything's going to be changed. It's like annual day चल रहा है, पूरे साल की practice हो रही है और एकदम से एक switch आता है and it हाँ, does not change. change. Next morning everything changes. Yeah. In a good way. Yeah, but But yeah. still वही ना Yeah, कि it changes. पूरे साल So- annual day की एक practice कर रहे हो, हाँ. अचानक से हुआ और खत्म हो गया, पता भी हाँ. नहीं चला. This was a lovely conversation. Even I had with- fun. Yeah. Like so, hoping you to see again. Yes, surely. Pakka. And Thank you, Rachita, for such an insightful session, and I'll see you next Sunday over a cup of coffee.